Hello students, welcome back. We are towards the end of the seventh topic that we were discussing. So we have studied about the consumption function, and then in the last lecture children I explained you about the savings function. So today we have two theory questions children. One is known as assumptions of Keynes consumption function, and then I'll be explaining what are the factors affecting consumption function. Keynes consumption function children is actually based on three different assumptions. Now the first assumption, as you can see it on your screen children, it says that a constant psychological and institutional factors कि अगर Keynes ने क्या indicate किया बच्चों या फिर what did Keynes present? Keynes says that कि whenever there is an increase in the income of a person, then his expenditure will also increase, but expenditure increases at a diminishing rate. It means that consumption does not rise as fast as income. So he assumes that consumption is a function of current income. बच्चों अपना खर्चा सिर्फ अपने करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो हमारे करंट इनकम के ऊपर, हमारे पास्ट इनकम के ऊपर, फ्यूचर में हम लोग क्या कमाने वाले, सब के ऊपर डिपेंड करता है. So he assumes that the psychological and institutional factors like income distribution, price level यानी कि the general prices in the market, population का growth, fashion, taste, habits, they do not change significantly in the short term. So we are not in a position to shape the consumption function. It means that your taste, preferences, fashions, population growth, all those things are going to remain constant in the short term. We are assuming that. Otherwise what happens is like, children, like if I know that in future I'm going to get certain income, then presently I'll be spending more money. But at the same time children, if I'm doubtful that in the future I may not receive proper money, तो ऐसे होता है कि like हम लोग अभी ज़्यादा पैसा रहेगा तो भी अपने खर्चे के ऊपर हम लोग कट डाउन करते हैं. So constant psychological and institutional factors is the first assumption. Second point, we say children, the existence of normal conditions. Keynes has assumed that there is an existence of normal circumstances. Now what are these normal circumstances? So extraordinary circumstances like war, revolution, यानी आंदोलन होता है बच्चों लोग, hyperinflation, they do not exist. It means that Keynes consumption functions holds good only under normal circumstances. बच्चों Keynes का consumption function normal situations में ही apply होता है. If you talk about certain disturbances like ना what they have stated, war होता है, revolution होता है, hyperinflation आता है बच्चों लोग, हाँ तो in these situations you might not be able to observe the Keynes consumption function. और तीसरा आता है बच्चों existence of laissez-faire economy. Now Keynes has assumed an atmosphere of laissez-faire with respect to people's choices between spending and saving. Laissez-faire का मतलब होता है बच्चों let the people do what they want. Indirectly it means that government will not interfere in the decisions of the people. लोगों का खर्चा क्या होगा, लोग कितना पैसा सेव करेंगे, ये entirely it will be a thing to be decided by the people and no decision will be influenced by the government. So if you follow all these three conditions, then the Keynes consumption function will also follow, right? Achha. Now that question may or may not come for the exams, but the next question that we have here children, factors affecting the consumption function, ये theory question करके पूछा जा सकता है. अच्छा, what is the basic idea behind this question children? Like what are the factors which affect the Keynes consumption function? हमारा खर्चा कौन कौन से factors के ऊपर depend करता है? अच्छा, तो there are two factors children, subjective and objective factors. So first of all let's have a look at the subjective factors. Subjective factors are basically psychological characteristics of human beings. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल अरेंजमेंट्स. अच्छा, दे आर लेस स्टेबल इन द
शॉर्ट पीरियड एक्सेप्ट इन एबनॉर्मल और रेवोल्यूशनरी सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, और ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं बच्चों लोग कि कंजम्पशन कर्व कौन से शेप का आएगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी या फिर वो डिक्लाइन होता है करके, ठीक है। द आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, आई विल गिव यू हिंट्स हाउ टू रिमेंबर दैट। द सब्जेक्टिव फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ दोज मोटिव्स व्हिच इंड्यूस individuals and business firms to refrain from spending, that is save more, are the following। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं बच्चों लोग जो किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं सेविंग करने के लिए और खर्चा कम करने के लिए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से? पहला, द मोटिव ऑफ प्रिकॉशन, इट इज अ डिजायर टू प्रोवाइड फॉर अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज। बच्चों लोग, हमारा लाइफ जो होता है वो बहुत सारे अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रहता है, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है हम लोगों को भी पता नहीं होता है। तो लोगों को एक जनरल आदत होती है बच्चों लोग कि अभी अगर हमारे पास पैसा है तो पूरा का पूरा खर्च किए बिना हम लोग इसमें से थोड़ा पैसा फ्यूचर के कुछ अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हम लोग साइड में करके रखते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पैसा ऐसा फ्यूचर अनसीन कॉन्टिजेंसीज के लिए रखोगे तो अभी तुम लोगों को अपने खर्चे के ऊपर कट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आपको फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है, हाँ, तो अभी आपका खर्चा फिर ज़्यादा होता है। तो लोग कितना प्रिकॉशन, किसी को लगता है कि अरे फैमिली में अचानक से किसी कोई बीमारी वगैरह आ गई तो अभी थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं तो फ्यूचर में खर्च करेंगे, राइट। दूसरा होता है बच्चों लोग द मोटिव ऑफ फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब क्या होता है कि देयर आर सम एंटिसिपेटेड फ्यूचर नीड्स, सो इट इज अ डिजायर टू प्रोवाइड फॉर एन एंटिसिपेटेड फ्यूचर नीड। जैसे कि किसी को डर लगता है कि अरे बुढ़ापे में मेरे को कौन पैसा देगा, तो अभी से मैं बचा के रखूंगा, तो लोग अभी का खर्चा कम कर देते हैं। अच्छा, किसी को लगता है कि अरे अगले साल मेरे बेटी की 10th स्टैंडर्ड है, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड आएगा, तो अभी से मुझे उसकी फ़ीस के लिए थोड़ा पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, तो अभी हम लोग अपने खर्चे को क्या करेंगे? कम करेंगे। वी आर गोइंग टू रिड्यूस ऑन द एक्सपेंडिचर। फिर आता है बच्चों लोग द मोटिव ऑफ कैलकुलेशन। व्हाट इज दैट? It is to desire to enjoy larger income at future date by of interest and appreciation। अभी या तो मेरे पास 10 लाख रुपए है, अभी मैं उनको ऐसे ही उड़ाऊँ, या फिर वो 10 लाख रुपए को मैं बैंक में डाल के रखता हूँ, 7 साल में वो डबल होके मिलेगा और फिर उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको मैं खर्च करूँगा। तो लोग ऐसे कैलकुलेटिव भी होते हैं कि लाइक इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द मनी दैट यू आर हैविंग, कीप द मनी, अर्न सम इंटरेस्ट एंड यू कैन स्पेंड दैट इंटरेस्ट। तो लोग अभी अपना खर्चा क्या करेंगे? फिर कम करते ताकि फ्यूचर में वो लोग खर्च कर सके। फिर आता है द मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या है मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट बच्चों लोग? पीपल वांट टू एंजॉय अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ऐसे होता है बच्चों लोग कि लाइक मैं अभी कुछ सैलरी कमाता हूँ, अभी मैं पूरा का पूरा पैसा खर्च करूँ, या फिर मैं सोचता कि थोड़ा थोड़ा बचा के रखूँगा, एक कार खरीद लेता हूँ, थोड़ा पैसा बचा के रखूँगा, अच्छे से घर खरीद लूँगा, थोड़ा पैसा बचा के रखूँगा, एक मस्त सा फॉर एग्जाम्पल बाइक ले लूँगा मैं। तो ये होता है बच्चों लोग मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी आपका जो सिचुएशन है उससे आप और थोड़े उभरना चाहते हो मतलब। फिर फिफ्थ वाला आता है द मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैनी टाइम्स चिल्ड्रन व्हेन वी ग्रो अप वी फील दैट वी वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट। आप फैमिली का हिस्सा बन के रहते हो, अच्छा, फिर कभी ना कभी आपको इंडिपेंडेंट होना होता है, खुद का घर खरीदना होता है, खुद अलग से सेटल होना होता है, और इसके लिए अभी से आप अपना पैसा क्या करोगे? बचा के रखोगे। सो इट इज़ अ डिज़ायर टू एंजॉय अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द पावर टू डू थिंग्स। मतलब हर बार घर वाले लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ, मैं थोड़ा पैसा बचा के रखता हूँ और कुछ खुद ही सेटल हो जाऊंगा करके। इसको बोलते हैं मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द मोटिव ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब होता है चलो बिजनेस। अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके मुझे अपना खुद का एक कॉलेज या फिर अपना खुद का एक कोचिंग क्लास स्टार्ट करना है करके, हाँ, तो फिर आपको पता है कि मुझे अभी से उसके लिए पैसा बचा के रखना पड़ेगा। हाँ, व्हाई एम आई सेविंग ऑन मनी चिल्ड्रन? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज इन द फ्यूचर and I want to start my own business projects. For that, अभी आप सब कुछ खर्च करोगे तो फ्यूचर में फिर आपका खुद का एंटरप्राइज नहीं हो पाएगा। फिर आता है बच्चों लोग द मोटिव ऑफ प्राइड। प्राइड का मतलब होता है बच्चों लोग गर्व बोलते हैं उसको, डिजायर टू बिक्विथ अ फॉर्चून। बच्चों लोग अपने पास बहुत सारा पैसा रहेगा, अपने पास बहुत सारा प्रॉपर्टी रहेगा, बंगला रहेगा, गाड़ी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली लाइक एग्जाम्पल आपको सोसाइटी में क्या मिलेगा?
प्राइड मिलता है। सो वी वांट टू बिक्विथ ऑल दैट फॉर्चून, इसीलिए हम लोग अभी अपने खर्चे को थोड़ा क्या कर सकते हैं, कम करते हैं। और 8th वाला पॉइंट आता है बच्चों लोग द मोटिव ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब होता है बच्चों लोग मिजलिनस, कंजूस। So there are certain people who know how to earn money but they don't know how to spend money. So they keep on collecting money with them and they never spend it. So their expenditure is less and they keep on stocking the money. बच्चों ये जितने भी फैक्टर्स हो गए इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स करके रिफर किया हमने उनको। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर चिल्ड्रन, द मोटिव्स which influence the behavior of business operations or corporations and government to refrain from spending are। मतलब कौन से ऐसे मोटिव्स है बच्चों जिसकी वजह से कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट अपना खर्चा रोकते हैं, तो उसके पीछे के भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए बच्चों लोग। फर्स्ट वन, द मोटिव ऑफ एंटरप्राइज, द डिजायर टू सिक्योर रिसोर्सेज टू कैरी आउट फर्दर एक्सपांशन। एक आध कंपनी बच्चों लोग 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, अभी वो कंपनी क्या कर सकता है, पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे कैन जस्ट एंजॉय ऑन द प्रॉफिट। और एट द सेम टाइम कंपनी को लगा कि नहीं, हम लोगों को ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है इससे और 2-3 ब्रांचेस स्टार्ट करने हैं अपने फैक्ट्री के, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने खर्चे के ऊपर काबू रखें, फिर फर्दर एक्सपांशन के लिए पैसे को यूज़ किया जाएगा। That is called as the motive of enterprise. The second one, children, the motive of liquidity. The desire to secure liquid resources to meet emergencies, difficulties and depressions. मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि देखो अपने पास पैसा है बच्चों लोग, सबका सब खर्च कर दोगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में सवाल आता है कि लाइक व्हाट विल बी स्पेंडिंग। तो मैनी पीपल हैव अ हैबिट कि लाइक अपने पास थोड़ा सा लिक्विड कैश रख के रहने का, कि सडनली कुछ भी इमरजेंसी आ गया, कुछ डिफिकल्टी आ गए, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ डिप्रेशन दिखा, तो आप फिर ये पैसा उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप अपने खर्चे को अभी कर्टेल करोगे, यू आर गोइंग टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंडिचर प्रेजेंटली। ओके, देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेम, द डिजायर टू सिक्योर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इनकम टू प्रोटेक्ट द मैनेजमेंट फ्रॉम क्रिटिसिज्म। क्या होता है बच्चों लोग, वी आर टॉकिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सब कुछ प्रॉफिट आ गया और उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया, तो सवाल ये आता है कि बाद में मैनेजमेंट को मतलब लाइक क्रिटिसाइज किया जा सकता है जब भी कभी प्रॉफिट होगा तो मैनेजमेंट क्या करेगा बच्चों लोग कि वो लोग थोड़ा सा पैसा जमा करके रखते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर ऊपर नीचे होता है तो ये पैसा वो लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दे विल बी सेव्ड फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। ओके, मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। फोर्थ वाला जो पॉइंट है बच्चों लोग, द मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। एंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन, द डिजायर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एंड एब्सोल्यूशंस। कुछ भी चीज़ें होती है बच्चों लोग, जैसे मशीनरी हमेशा के लिए नहीं होती है बच्चों लोग, कभी ना कभी खराब होती है, हाँ, तो उसको एब्सोल्यूट होने के बाद हम लोग निकालते हैं ना, स्क्रैप में नया मशीन खरीदते हैं। हाँ, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को देख के हुए हम लोग ये जो पैसा साइड में करके रखते हैं उसको बोलते हैं द मोटिव ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। प्रूडेंस इज फ्यूचर। ओके, एंड देन वी कम अक्रॉस सर्टेन चिल्ड्रन फैक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अभी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, दे विल कॉज अ चेंज इन द नेचर एंड शेप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। फर्स्ट, चेंजेस इन द वेज लेवल, मतलब आपके पगार में जो चेंजेस आते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सिंस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम देन ऑफ मनी इनकम, अ चेंज इन वेज लेवल और प्राइस लेवल विल चेंज द रियल इनकम, दिस इन टर्न अफेक्ट्स द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि आपके पगार के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना, आपको पता है फ्यूचर में आपका सैलरी इंक्रीज होने वाला है, तो अभी आप अपना खर्चा बढ़ा सकते हो। आपको डर लगता है कि लाइक कोविड की वजह से आपका सैलरी कट होने वाला है, तो आप अपने खर्चे को कम भी कर सकते हैं, मतलब यस। देन वी हैव गॉट विंडफॉल गेन्स और लॉसेस। व्हाट आर विंडफॉल गेन्स और लॉसेस? दे आर सडन अनएक्सपेक्टेड गेन और सडन एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो उसकी वजह से बच्चों कंजम्पशन चेंज हो सकता है। सडनली आपको कहीं पे लॉस हो गया और फिर आपने अपना खर्चा पूरा का पूरा बंद ही कर दिया। सडनली कहीं पे आपको गेन हुआ, लॉटरी का प्राइस मिल गया आपको, और फिर आपने अपना खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था,
तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों आपका खर्चा कितना होगा। थर्ड वाला पॉइंट है चेंजेस इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज आर बेसिकली द पॉलिसीज ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट बोलते हैं उसको हम लोग। अच्छा, अभी कंजम्पशन फंक्शन फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब ऐसा कैसे है, हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेशन विल रिड्यूस द कंजम्पशन फंक्शन। अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, जैसे कि जीएसटी बढ़ाती गई, तो लोग अपना खर्चा क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि टैक्स चाहता है। ऑन द अदर हैंड, द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अलॉन्ग विद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स will shift the consumption function upwards by bringing about more equal distribution of income। तो जो अमीर है ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जो गरीब है उनको थोड़ा कम टैक्स लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, और गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम्स के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन फंक्शन है वो चलो अपवर्ड जाएगा, और जो अपने सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है वो ऑटोमेटिकली इक्विटेबल हो जाएगा। And then children, we got the changes in expectations। लोग फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में इनकम क्या होगा, फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, फ्यूचर में गुड्स अवेलेबल होंगे क्या नहीं होंगे, ये सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों लोग के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल कि लोगों को डर लगता है कि फ्यूचर में वॉर होने वाला है, या फिर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, या फिर गुड्स का शॉर्टेज होगा। हाँ, तो लोग क्या करेंगे पता, अभी उनको जितना ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा परचेस करके रख लेंगे। दैट मीन्स दे विल बाय मोर देन देयर करंट नीड्स, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, दिस विल शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड्स। देन देयर इज ऑल्सो चिल्ड्रन लाइक द रेट चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से बदलता है। द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लुएंस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बट द डायरेक्शन इज नॉट सर्टन। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे पता है, खर्चा कम करेंगे और ज़्यादा बचा के रखेंगे। ऑन द अदर हैंड, विद द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल में कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो लॉजिक क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, खर्चा कम करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो लोग क्या करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे और सेविंग्स कम करेंगे। हाँ, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल चिल्ड्रन जिन लोगों को लगता है कि मेरे को फिक्स इनकम चाहिए, सो दे विल सेव लेस इवन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को फिक्स इनकम चाहिए, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। एंड चेंजेस इन द नेट इनकम, चलो द कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन नेट इनकम एंड नॉट द टोटल इनकम। जैसे कि कभी कभी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चेंज होते हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड्स बदले जाते हैं, दिस विल अफेक्ट द नेट इनकम and therefore influence the consumption function. Okay, now along with this lots of factors that we studied children, हर एक चीज़ में हमने देखा है कि लोग अभी का खर्चा बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, अभी का खर्चा क्यों रिड्यूस करते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे के रीजंस देखे हमने। अच्छा, there are certain other points that we need to know children, जैसे कि financial policies of corporates, holding of liquid assets, distribution of income। अच्छा, डिविडेंड कितना पे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स कितने होते हैं, ये सब। जैसे कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो लोग ऑटोमेटिकली अपना खर्चा बढ़ाएंगे। एंड पीपल होल्ड लार्ज लिक्विड एसेट्स विल ट्राई टू स्पेंड मोर आउट ऑफ देयर करंट इनकम एंड वाइस वर्सा। एंड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कम्युनिटी इज मोर अनइक्वल, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लो। अगर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चलो सोसाइटी में, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लाइक पीपल विल कट डाउन ऑन देयर एक्सपेंडिचर। एट द सेम टाइम वहीं पे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रहेगा सोसाइटी में, देन पीपल स्पेंड टू मोर मनी। एंड द जनरल कंक्लूजन इज दैट एक्सेप्ट फॉर क्वाइट abnormal or revolutionary changes in certain objective factors caused by unexpected events like war, earthquake, strikes होते हैं, revolutions होते हैं, the shift in the propensity to consume out of given income are not likely to be of any major importance। तो ज़्यादातर सिचुएशंस में माइनर चेंजेस होते हैं बच्चों। हाँ, लेकिन स्ट्राइक, रेवोल्यूशन, अर्थक्वेक्स, वॉर्स ऐसा कुछ हो गया तो फिर मेजर चेंजेस हो सकते हैं। Right, so these are the points children which are referred to as the factors affecting consumption function.
or as I told you children, they are also called as the determinants of the consumption function. So that's all about chapter number 7 children. So we have moved from chapter number 1 to chapter number 7. थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना है. मैं आपको जैसे एग्ज़ाम के बारे में कुछ सुनाई देगा तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैम, राइट. So in the coming lecture children, we'll move towards the next chapter, okay, or we will be trying to complete our portion for the third semester. That's all for today children. Bye everyone, take care, see you in the next lecture.